Assalamu alaikum. Today our unit number 1 will be completed and we will start unit number 2, War and Peace. Open your book OPE at page 21 because first of all we are going to complete our topic anti-para here and the orphan elephant. So look at page number 21 and we are going to read third last line of this page. The sad little orphan who stood silently by the tree and he was 10 months ago with his trunk curled on the ground has found a new life. The orphan elephant about which we have read in the start of the topic that he was standing under a tree and his trunk was curled on the ground and his condition was very weak. And now if we look at that elephant, he has become healthy and now he is happy with the other elephants. He has found a new life with them. The great candy para is all over for another year. Now the celebration or the religious ceremony is all over for another year because after one whole year, the next ceremony will be happened. Now on the next page, page number 22, if you will look at this page, here is a box, yellow box, in which we are told about the orphan elephant. As you know that you were asked to separate the two texts which are mixed together in this topic, and on the next page you are given both the topics separated. On page number 22 orphan elephant is written, and on page number 24 to 25 Candy Parahira celebration is described fully. So you can read them separately if you can't understand as it is mixed. And now the next thing is about English language, and the topic is homophones and homographs. On page number 23, you can see that we are given under heading number 2. We are given two words, morning and morning. These two words are homophones because their sound is same but their spellings are different. morning, morning means subah, and mourning, morning means matam karna, kisi ka rona, death वगैरह पर. These two words have different spellings but they are spelt or they are pronounced in the same way. So this type of word is called homophones. I have told you the meaning of both of these words, and now you have to try to make sentences of the both words. In number 3, you are given homographs, trunk and trunk. Homograph means the words that have same spelling, same sound, but their meanings are different. You can see that their spellings are same, trunk trunk, and the other is also trunk trunk. First trunk is एक जो trunk होता है वो हम दरख्त के तने को trunk कहते हैं, and the second trunk is जैसा कि आपने topic में पढ़ा है trunk of the elephant. Elephant के trunk को कहा गया है. ये दो words जो हैं इनकी same sound है, same spellings है, लेकिन meanings इनके different हैं. इस तरह के words को homographs कहा जाता है. You have to make sentences of both these homophones and homographs and try to learn them. Our unit number 2 is War and Peace. Here is a topic, and this is non-fiction, means this is real story, and the name of the topic is origami. Origami, what is origami? It is a very ancient Japanese art of paper folding. जापानीज आर्ट है और पेपर फोल्डिंग का आर्ट है ये जापानीज, और इसको ओरिगेमी कहा जाता है. इट एक्चुअली बिगन इन चाइना बट स्प्रेड टू जापान बाय द 6th century, सिंस व्हेन इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जापानीज कल्चर. कि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड एक्चुअली इन चाइना, लेकिन वहाँ से ये जापान में आया बाय द 6th century में, और तब से ये जापानीज कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है. Paper butterflies made for weddings to symbolize the bride and groom are just one example of the many traditional origami figures evolved over the centuries. कि कई centuries से जो है ये उनकी ट्रेडिशन चली आ रही है, और इसमें से एक जो सिम्बलाइज करते हैं वो ब्राइड ग्रूम को शादी पर दूल्हा दुल्हन के लिए जो वो पेपर फ्लावर्स जो हैं फोल्ड किए जाते हैं, बटरफ्लाइज फोल्ड की जाती हैं उनके लिए, और ये जो है उनकी उसमें ट्रेडिशन में शामिल है. और उसके बाद क्या है कि ओरिगेमिस्ट टुडे एक्सपेरिमेंट विद न्यू मटेरियल सच एज फिल्म, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रिएट फैंटास्टिक क्रिएशंस फ्रॉम द सिंगल शीट.
कि अब क्या है कि ओरिगेमी में जैसा कि पता है कि इसमें ना तो पेपर की कटिंग की जाती है, ना ही इसमें पेपर पे ग्लू वगैरह लगाई जाती है, बगैर किसी ग्लू के, बगैर किसी कटिंग के, जस्ट सिंगल पेज लेकर उसको फोल्ड किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से, और उसके बाद एक जो फाइनल शेप बनेगी जिस भी चीज़ की, वो ओरिगेमी कहलाएगी। अब जो ओरिगेमिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो न्यू न्यू चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो फिल्म को लेकर, जो फिल्म्स होती हैं उनके ज़रिए भी ओरिगेमी का आर्ट जो है ये उन पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे सिंगल शीट पे ये सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। शेफर, a contemporary American origamist, has created a model of the Star Trek spaceship Enterprise, which takes 72 diagrams, 11 pages of instruction, and a week to make. कि एक पर्सन के बारे में बात की गई है, शेफर के बारे में, कि उसने एक, वो ओरिगेमिस्ट है, अमेरिकन है, और उसने जो है एक मॉडल क्रिएट किया है स्टार ट्रैक स्पेसशिप का, और इस पर 72 डायग्राम्स हुई हैं, 11 पेजेस इंस्ट्रक्शंस के हैं कि अगर कोई उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसके जैसा ओरिगेमी जो है या वो जो मॉडल उसने बनाया है वो बनाना चाहे, तो के लिए उससे जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए डायग्राम्स यूज़ हुई वो 72 थी, जिसपे उसने डायग्राम्स दी, और उसके बाद था कि पेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो थे 11 थे, 72 डायग्राम्स थी, और एक वीक लगा उसको ये सब बनाने में। बट ऑल ओरिगेमिस्ट अबाइड बाय द टू एसेंशियल रूल्स ऑफ ओरिगेमी, नीदर सीजर नॉर ग्लू इज़ टू बी यूज्ड, कि ना तो सीजर ना ही ग्लू यूज़ की जाती है, ये दोनों चीज़ें ओरिगेमी में नहीं आती। इनके बगैर सिर्फ हाथ से ही फोल्ड करने से जो चीज़ बनती है, दैट इज़ कॉल्ड ओरिगेमी आर्ट। एंड नाउ क्रेन्स. What are cranes? Cranes are elegant, long-legged, long-necked birds which are found in many parts of the world. कि ये बर्ड्स हैं, क्रेन्स जो हैं ये, इनकी लॉन्ग नेक होती है, लॉन्ग इनकी लेग्स होती हैं, एलिगेंट बर्ड्स हैं, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन वेटलैंड वेयर दे वेड मीन्स वॉक थ्रू, के जहाँ पे ये वॉक थ्रू कर सकते हैं, वेटलैंड्स पे जहाँ पे गीली ज़मीनों वगैरह पे, वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। एज जापान इज़ अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स, क्रेन्स आर वेरी कॉमन एंड दे फीचर इन जापानीज़ आर्ट एंड लेजेंड्स। यहाँ पे वहाँ पे उनके आइलैंड्स वगैरह ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उस तरह की लैंड को ये प्रेफर करते हैं, वहाँ पे रहना इनको सूट करता है, जिसकी वजह से क्रेन ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। हाउ टू मेक अ पेपर क्रेन. अब क्रेन्स जो हैं ये भी पेपर फोल्डिंग के ज़रिए बनाई जाती हैं, ओरिगेमी आर्ट के ज़रिए क्रेन्स बनाई जाती हैं, जो बर्ड्स हैं क्रेन वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पेज नंबर 29 पे यू आर गिवन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, हियर आर 17 डायग्राम्स, एंड if you follow these instructions by looking at the diagrams, you can easily fold a paper, and at the end you will use two papers or two pages, and at the end your final project will be a bird, which is crane. And now this paper crane is very easy to make if you try to look step by step and gradually follow all the instructions. You can make paper crane easily. And now our topic starts from page number 30, the paper cranes of peace. There is a Japanese legend which says that whoever folds 1000 origami cranes will live a long life. Japanese legend है जिसका ये मानना है कि जो भी अपनी लाइफ में 1000 origami cranes fold कर लेता है, he will live a long life. This legend took on a new and poignant significance in 1955. इस legend को ज़्यादा important significance कब मिली? 1955 में. किससे मिली? With the death of a 12-year-old girl in Japan. एक 12 साल लड़की की डेथ हुई थी जापान में. Her name was Sadako Sasaki and she was born in 1943. Towards the end of World War II in 1945, the United States of America decided to use an entirely new, untested weapon to force Japan to surrender. Second World War का जो end था 1945 में, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या डिसाइड किया? टू यूज़ एन एंटायरली न्यू अनटेस्टेड वेपन. एक इस तरह का जिसको बिल्कुल भी अनटेस्टेड, अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था, न्यू वेपन था उनका एक, उसको उन्होंने किसके लिए यूज़ करना चाहा? टू फोर्स जापान टू सरेंडर. जापान को सरेंडर करवाने के लिए यूज़ करने का डिसाइड किया उन्होंने. ऑन 6 अगस्त 1945 a B-29 bomber dropped the वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा. उन्होंने हिरोशिमा पर वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो है वो गिराया. एंड अ सिटी विच हैड अनटिल देन एक्सपीरियंस्ड वेरी लिटिल कन्वेंशनल बॉम्बिंग. उस सिटी पर कभी कोई ख़ास बॉम्बिंग नहीं उसने कभी एक्सपीरियंस की थी. फर्स्ट ये एक्सपीरियंस था कि इतना ज़्यादा उस पर अटैक किया गया ज़बरदस्त. द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन 18
8:15 AM 580 मीटर्स अबव द सिटी सेंटर। टाइम जो था एक्सप्लोड होने का, धमाके का जो टाइम था वो 8:15 था, सुबह 8 सवा 8 का टाइम था, 580 मीटर्स अबव द सिटी, और वहाँ से जो है सिटी सेंटर से 580 मीटर के डिस्टेंस से किया गया ये अटैक। Tens of thousands of people were killed instantly by the blast। लाखों लोग जो थे इसके उससे मारे गए फ़ौरन ही, at the spot ही। And the death toll rose to between 180,000 and 2 lakhs over the following years as the terrible after effects of the atomic bomb claimed the lives of hundreds of thousands of people। लाखों लोगों की ज़िंदगियां जो थी इसमें गईं, और वजह क्या थी कि कुछ तो फ़ौरन ही उस धमाके की नज़र हो गए और फौत हो गए, और जो बच गए थे उसमें से भी काफ़ी लोग, उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो थी वो मर गई, उनकी डेथ हो गई। और वजह थी आफ्टर इफ़ेक्ट्स। इस धमाके ने जो उनकी कंट्री पर जो इफ़ेक्ट्स छोड़े थे, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं आप उनको, या आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह लें, कि उस तरह के इफ़ेक्ट्स जो थे, हवा में जो जहर शामिल हो गया था, जो पोल्यूशन शामिल हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां लगना शुरू हो गई और वो मरना शुरू हो गए। जस्ट वन ऑफ दीज विक्टिम्स वॉज सडाको सासाकी। इन्हीं विक्टिम्स से, यही जो इस ब्लास्ट के शिकार हुए थे लोग, इसका असर हुआ था जिन लोगों पर उसका ब्लास्ट का, उनमें से ये गर्ल सडाको सासाकी भी शामिल थी। शी वॉज अ हेल्दी, एथलेटिक एंड लाइवली चाइल्ड अंटिल वन डे शी वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर अ बिग रेस। वो एक बिल्कुल हेल्दी चाइल्ड थी, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी, और एक दिन वो अपनी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। व्हेन शी वाज ओवरकम बाय डिजीनेस, मीन्स कि उस पर बेहोशी टाइप उस पर हुई, एंड कोलैप्स्ड, वो गिर गई। उसके बाद क्या हुआ कि शी वॉज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया। उसको ल्यूकीमिया कैंसर जो था वो पता चला, कैंसर ऑफ द ब्लड, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंटेमिनेशन बाय द एटॉमिक बॉम्ब व्हेन शी वाज जस्ट 2 ईयर ओल्ड। सिर्फ 2 साल की थी जब ये हुआ, और उसके ठीक 10 साल के बाद इसकी डेथ हुई। मीन्स के 2 साल की थी जब ये अटैक हुआ था, और उसका असर उस पर इतना ज़्यादा हुआ, उस कंटेमिनेशन का, उस आलूदगी का उस पर इतना असर हुआ कि उससे उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, और उससे उसकी डेथ हुई। Nowadays many kinds of childhood leukemia are curable। कि आजकल तो जो ब्लड कैंसर हैं बच्चों के, खासकर जो हैं वो क्यूरेबल है, उनका इलाज है, काबिल इलाज हैं। बट इन जापान इन द 1950, ये बात हो रही है 1950 की, इट वाज कॉल्ड द एटम बॉम्ब डिजीज़। उस टाइम इस डिजीज़ को, ब्लड कैंसर को एटम बॉम्ब डिजीज़ कहा गया, एंड नोन टू बी फैटल। ये मोहलिक, फैटल ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिससे मर जाए इंसान। तो उस टाइम बहुत पहले की बात है, तब इसका इलाज भी नहीं था, और ये एक जानलेवा बीमारी थी, और इससे जो भी इसका शिकार होता उसकी डेथ हो जाती थी। सडाको वॉज एन एक्सट्रीमली करेजियस लिटिल फाइटर। बहुत करेज, हौसले वाली ये लड़की थी, और मोर देन एनीथिंग एल्स शी वांटेड टू रिकवर एंड रन रेसेस वंस अगेन। वो दोबारा से रिकवर होकर, ठीक होकर अपनी रेसेस में जो है शामिल होना चाह रही थी। Her best friend told her about the legend which said that anyone who folded 1,000 paper crane would be granted a wish। कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड था या थी, उसने उसको बताया कि उस लेजेंड के बारे में बताया जो कहता था कि 1,000 पेपर क्रेन्स अगर आप फोल्ड कर लेते हैं तो आपको एक विश मांगने का मौका मिलता है, एंड सडाकोज विश वुड बी टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। और सडाको जैसा कि कैंसर की पेशेंट थी, तो उसकी एक ही विश थी कि वो उसको लंबी ज़िंदगी मिल जाए। शी बिलीव दैट एवरी क्रेन शी फोल्डेड रिप्रेजेंटेड अ wish, and so she used every scrap of paper which could be found for her to fold her cranes। उसको जो पेज मिला, जहाँ से मिला, उसने उसको फोल्ड करना शुरू कर दिया, ये समझ करके एक एक फोल्ड जैसे से वो करती जाएगी तो उसकी विश पूरी होती जाएगी। इवन एज हर फ्रेंड्स alongside her in the hospital died, उसके साथ, उसके हॉस्पिटल में जहाँ पे उसका इलाज हो रहा था, वहाँ पे उसके साथ उसके एक फ्रेंड की डेथ हुई। शी केप्ट ऑन फोल्डिंग। फिर भी जो थी उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो फोल्ड करने में लगी रही क्रेन्स को। बट हर विश चेंज्ड। अचानक से उसकी विश चेंज हो गई। पहले उसकी विश थी कि उसको लॉन्ग लाइफ मिले, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी विश बदल दी, और अब क्या थी, नाउ शी विश दैट दिस काइंड ऑफ atrocity should never happen again। atrocity means cruelty। इस तरह का जुल्म कि इतने बड़ी तादाद में लोगों को मार दिया जाए, इस तरह की क्रूएलिटी, जुल्म जो है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, एंड इस तरह दोबारा कभी ना हो। अब ये उसकी विश थी। देयर शुड बी नो मोर बॉम्ब और वॉर्स, के दोबारा से कभी इस तरह के अटैक्स या वॉर्स ना हो। हर विश वॉज फॉर पीस। वो पीस चाह रही थी दुनिया में। सो हर नीदर चिल्ड्रन नॉर एडल्ट्स शुड एवर सफ़र एंड डाई लाइक दिस अगैन। कि वो कह रही थी कि वो तो चलें बीमार हो गई, पेशेंट हो गई कैंसर की, अब वो अगर मर भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये चाह रही थी कि उसके बाद कभी किसी बड़े को, बच्चे को, किसी को भी ये बीमारी ना हो, इस तरह के अटैक्स ना हो, कोई भी इस तरह बीमारियों का शिकार होकर इस तरह की मौत ना मरे।
Sadako managed to fold 644 cranes before she could fold no more. उसको लाइफ ने इतना ही जो है टाइम दिया कि उसने 644 cranes फोल्ड कर लिए, 1000 नहीं कर सकी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई. She died on 25 October 1955. Her classmate and family folded the remaining 356 cranes to bury with her. अब जो उसके क्लासमेट्स थे, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने बाकी के 356 पेपर क्रेन्स फोल्ड किए ताकि उसके साथ उनको बरी कर दें, दफन कर दें. बट हर ट्रिमेंडस करेज एंड होप हैड बीन एन इंस्पिरेशन टू ऑल हु केम टू नो ऑफ हर पेपर फोल्डिंग. जिनको भी उसके बाद उसकी पेपर फोल्डिंग के बारे में, उसकी विश के बारे में पता चला, वो बहुत उससे इन्फ्लुएंस उनको मिला, मुतासर हुए उससे. एंड हर फ्रेंड्स were determined that she would be remembered. उसके फ्रेंड्स जो थे वो उनको पता था कि वो उसको कभी भूल नहीं सकेंगे. एंड हर विश वुड बी फुलफिल्ड, कि उसकी विश जो है वो भी पूरी हो जाएगी. एंड वो यही चाह रही थी, वो यही चाहते थे कि उसने जो विश की थी, जिसके लिए इतनी ज़्यादा उसने क्रेन्स फोल्ड की थी, वो ये चाह रहे थे कि वो विश पूरी हो जाए, कि दुनिया में पीस आ जाए. यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर जापान कंट्रीब्यूटेड मनी फॉर द प्रोजेक्ट विच वुड इंश्योर दैट सडाको वुड नेवर बी फॉरगॉटन. उनके जो लोग थे कंट्री के, उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, हिस्सा दिया, पैसों की जो है मदद उन्होंने दी, किस में, एक उसमें प्रोजेक्ट में, जिससे उनको पता चला कि सडाको जो है वो कभी भुलाई नहीं जाएगी. 1958 में क्या किया, स्टैचू ऑफ सडाको होल्डिंग अ गोल्डन क्रेन वॉज अनवेल्ड इन हिरोशिमा पीस पार्क. हिरोशिमा में पीस पार्क में उस लड़की का, सडाको सासाकी का एक स्टैचू बनाया गया और उसके हाथों में पेपर क्रेन्स ऊपर रखे गए, ये शो करने के लिए कि वो पीस चाहती थी, अमन चाहती थी दुनिया में. और यही जो है रिप्रेजेंट करा था उसका स्टैचू. और लोगों ने इसके बनाने में जो भी ख़र्चा आया, जो एक्सपेंसेस थे, वो लोगों ने उसमें हिस्सा डाला. द विश ऑफ द चिल्ड्रन हु वर्क फॉर द प्रोजेक्ट इज़ इंस्क्राइब्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू. बच्चों की जो विश थी, जो सडाको सासाकी की विश थी, वो इस स्टैचू पे इंस्क्राइब की गई है. इंस्क्राइब मीन्स के राइट की गई है, लिखी गई है स्टैचू के उसमें, एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के बॉटम में. इट रीड्स, और उसके वर्ड्स क्या हैं, दिस इज़ आवर क्राई, दिस इज़ आवर प्रेयर, पीस इन द वर्ल्ड. कि उनकी क्राई, उनकी प्रेयर, उनकी दुआ, उनकी ख्वाहिश क्या है कि पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अमन आ जाए. टुडे द origami cranes have become a symbol of the wish for peace. आजकल जो origami cranes हैं विश का, पीस का सिंबल बन चुकी हैं. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर जापान एंड द वर्ल्ड फोल्ड पेपर क्रेन्स एंड सेंड देम टू सडाकोज मोन्यूमेंट. लोग सारी दुनिया से और जापान से पेपर क्रेन्स फोल्ड करके उसके मोन्यूमेंट पे भेजते हैं हिरोशिमा में. अक्रॉस द रोड फ्रॉम सडाकोज पीस मॉन्यूमेंट इज़ द फ्लेम ऑफ पीस. कि उस वहाँ जहाँ पे इसका स्टैचू है, मॉन्यूमेंट लगाया गया है, उससे अगर आप सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएं तो वहाँ पे क्या है, एक फ्लेम ऑफ पीस है, एक शमा जलाई गई है. इट वुड बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली व्हेन ऑल न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन एलिमिनेटेड. दुनिया से जिस दिन सारे न्यूक्लियर वेपन्स का इस तरह के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनसे कि एटॉमिक अटैक्स किए जाते हैं, इस तरह के वेपन्स अगर जिस दिन दुनिया से सब ख़त्म कर दिए जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, एक्सपेल या ड्रॉप कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, उस दिन वो जो है फ्लेम ऑफ पीस बुझा दिया जाएगा फ्रॉम द अर्थ. टुडे इट इज़ स्टिल बर्निंग. आज तक वो अभी तक जल रहा है, क्योंकि दुनिया में बजाय न्यूक्लियर वेपन्स कम होने के बढ़ते ही जा रहे हैं.